Hello everyone, children. In today's video, we will do some previous year questions for practice of the chapter alcohols and phenols. For the practice, the first question I have taken is conversion of phenol to benzene. Children, phenol को benzene में convert करने के लिए हमारे पास सबसे simplest reaction है to react it with zinc dust. Children, जिंक डस्ट इमीडिएटली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है एंड फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happens when tertiary alcohols are heated over copper at 573 Kelvin. So children, tertiary alcohol को जब भी हम copper at 573 टेम्परेचर पर हीट करते हैं, it involves the removal of water OH from this side and H from one of the alkyl group. किसी भी एक अल्काइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन माइनस होगा एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन. स्टूडेंट, आप इसकी नंबरिंग करके इसका नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं. आफ्टर हैविंग द नंबरिंग यू कैन नेम इट लाइक दिस: 2-methyl prop 2ene. स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ दिस टर्शरी अल्कोहल, अगर हमारे पास रिएक्शन में है secondary alcohol, suppose I have made this example of secondary alcohol. तो बेटा in secondary alcohol again with copper at 573 Kelvin temperature, it results into the formation of ketone with the removal of hydrogen. ठीक है. इन द सेम वे प्राइमरी अल्कोहल में भी सिर्फ हाइड्रोजन का रिमूवल होता है. ओनली इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल वाटर इज बीइंग रिमूव टू मेंटेन द वैलेंसी. क्वेश्चन नंबर 3 इज कॉल्बेज रिएक्शन. सी, कॉल्बेज रिएक्शन के लिए वी कैन यूज सोडियम फिनॉक्साइड आयन ऑन ट्रीटिंग इट विद कार्बन डाइऑक्साइड. इट विल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ OHCOONA group. On further treating with dilute HCl, it results in the formation of a very famous product which is named as salicylic acid with the removal of NaCl. So children, NaCl remove होगा, this Na and Cl, और Na की प्लेस पे आएगा H. The compound formed is called salicylic acid, and in IUPAC you can give the numbering 1 to 2 for hydroxy group. So it is named as 2-hydroxy benzoic acid. This compound is very famous because this compound is also used for the preparation of aspirin. The next question is the conversion of ethyl alcohol to methyl alcohol. Children, in ethyl alcohol, you know, we have 2 carbon atoms, and in methyl alcohol there is only 1 carbon atom. तो सबसे important thing है, हमें यहाँ पे एक कार्बन को माइनस करना है. कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें एक कम्प्लेक्स मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें बहुत सारे स्टेप होंगे. तो फर्स्ट स्टेप जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इथेनॉल के लिए, वो है its oxidation in the presence of strong oxidizing agent A2Cr2O7. It then in presence of strong oxidizing agent always alcohol convert होते हैं acid में. After having acid, I will treat it with sodium hydroxide. Then सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से OH और H मिलाकर वाटर लॉस होगा and it will result in the formation of CH3COONA. Children, in the next step, once again I will use one more molecule of NaOH in the presence of calcium oxide, which is a dehydrating agent. Then it will remove Na2CO3. ठीक है, all Na, ठीक है, 2Na and CO3. Na2CO3 जब यहाँ से हम माइनस करेंगे, what will left? It will only left with CH4 because फोर्थ हाइड्रोजन कहाँ से मिला है हमें? H से. ओके, NaOH का H जो है फोर्थ हाइड्रोजन है. यहाँ CH4 आने के बाद
हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। CH4 की डायरेक्ट हेलोजनेशन करके हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू क्लोरोमिथाइल। और अब हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं। इन द एंड आई विल ऐड एक्वस KOH। तो ये एक्वस KOH की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बिटवीन OH एंड Cl और अल्टीमेटली इस रिएक्शन मिक्सचर से माइनस हो जाएंगे KCl एंड द न्यू प्रोडक्ट इज मीथेनॉल। सो बेटा ये एक लॉन्ग वे कन्वर्जन है, स्टेप्स है इसमें मल्टीपल स्टेप। आप इसमें और भी कई तरह के स्टेप्स को यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीमर टिमर रिएक्शन। तो इट इज अ वेरी फेमस रिएक्शन। रीमर टिमर रिएक्शन के रीजेंट है फिनॉल in the presence of chloroform, and along with chloroform we will use NaOH. okay, so ये भी एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है in which first of all ये OH और Na, ठीक है, यहाँ से HOH वाटर माइनस होगा और ONA यहाँ अटैच होगा। इन द सेम वे इस कार्बन का 1HCl के साथ जाएगा और माइनस होगा HCl और एक वाटर ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो यहाँ पर कंपाउंड अटैच होंगे CHCl2, एक H और एक Cl, ठीक है। H कौन सा, जो हर कार्बन पे प्रेजेंट होता है, इस पॉइंट का वो माइनस होंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल ऐड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, और ये 2 NaOH है तो आपको क्लियर होगा कि Na तो हमेशा Cl के साथ बॉन्ड करता है। ये दोनों NaCl इस तरह से बॉन्ड करेंगे और इन दोनों Cl की पोजीशन लेगा OH। See in the next structure what happen actually, here comes ONA as it is, then C के Cl की पोजीशन पे आ जाएंगे दोनों पोजीशन पे H, एंड अब यहाँ से लॉस करेंगे हम वाटर। कैसे वाटर लॉस होगा, OH and H, okay, OH and H result in the formation of water. Here is ONA and here becomes CH and oxygen to maintain valency। यहाँ पर हम डालेंगे डबल बॉन्ड और लास्ट जो स्टेप है हमारा, वी हैव टू रिमूव Na, और Na को रिमूव करने के लिए ऑलवेज वी आर यूजिंग HCl। सो यहाँ से माइनस होगा NaCl and the position of Na is replaced by H of dilute HCl. So this is the product finally which is named as salicyl aldehyde. And we can also do its numbering to give its IUPAC name. So it is 2-hydroxy benzaldehyde. The next question is distinguish between phenols and alcohols. See children, what are phenols? Phenols are this one and alcohols look like this. Okay, these are phenols and these are alcohols. The famous reaction that we can use to distinguish these two is ferric chloride test. So with ferric chloride test, phenol always form violet or blue PPT but alcohols do not। ठीक है, कैसे करेंगे हम ये रिएक्शंस, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि when we have alcohols and we are going to add FeCl3 then there will be no coloration, किसी भी तरह का कोई कलर अपीयर नहीं होगा। But in case of phenol, when you are going to add FeCl3, they both will react to form a new compound। Here sodium phenoxide ion जो है, it results into the formation of this complex along with the formation of HCl, and यहाँ पर to maintain the valency हम करेंगे thrice से इसको बैलेंस। सो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, दिस कंपाउंड इज ऑफ वॉयलेट और ब्लू कलर। ओके, तो ऐसा कोई कलर अल्कोहल के साथ नहीं आ रहा, तो फिनॉल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करेंगे फेरिक क्लोराइड टेस्ट। The next question is how can you convert phenol to aspirin? So phenol look like this। ओके, सो हम इसको एस्प्रिन में कन्वर्ट करने से पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव कॉल्वेज रिएक्शन। यू कैन यूज
कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद NaOH। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिनॉल से यहाँ पर बनाएंगे सैलिसिलिक एसिड। ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम है वेन एवर देर इज Na को रिमूव करने के लिए ऑलवेज वी आर यूजिंग डाइल्यूट HCl, then the finally it will convert into salicylic acid. This is salicylic acid. Okay, and how can we convert it into aspirin? So for aspirin I am using here acetyl chloride. Okay, so this acetyl chloride, in the presence of this acetyl chloride, what happen, this H or Cl will eliminated and the new product formed will be OCOCH3 COOH. Okay, so this compound is named as aspirin. In IUPAC it is named as 2-acetoxy benzoic acid. This is the IUPAC name for this aspirin. The next compound is esterification reaction. Children, esterification reaction is very simple. You are adding acid and alcohol to result in the formation of ester and water. Okay, so this is the esterification reaction where acid and alcohol react together with the removal of water to form ester. So this is a esterification reaction. The next is alcohols are weaker acid than water. तो जल्दी से इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं. This is the structure of water and this is the structure of alcohol. The only difference between these two is here is R group, okay, but in case of water both other atoms that are attached to oxygen are hydrogen. So ये R group ही difference यहाँ पे create कर रहा है because R group is a plus I group. Plus I means electron releasing group. It will release electron to the oxygen. So what is acidic strength actually? Acidic strength is tendency to lose H positive. H positive कैसे loss होता है? When oxygen attract electron toward itself, because oxygen का electronegativity the second most electronegative है with the 3.5 electronegativity. It will attract electron from hydrogen and facilitate the release of H positive ion. But in case of alcohol what happen, there is a R group which is providing electron to oxygen, so its tendency to snatch or to withdraw electron from hydrogen decreases because it is already getting electrons from the R group. So that is why alcohols are weaker acids as compared to the water, क्योंकि R group plus I है, already electron provide कर रहा है oxygen को, so that is why उसकी इलेक्ट्रॉन स्नैच करने की टेंडेंसी फ्रॉम द हाइड्रोजन डिक्रीज हो रही है और एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हीटेड ओवर वाटर. तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्ट हम कर लेते हैं. बेंजीन डाइजोनियम chloride. So what is this benzene diazonium chloride? It is formed from aniline by diazotization reaction actually. तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब भी हम वाटर से ट्रीट करते हैं देन वी हैव अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट दैट इज फिनॉल with the removal of nitrogen and HCl. So how these two side product form? This is nitrogen and one H and Cl form HCl. So only left with OH. ठीक है, वाटर का सिर्फ OH रहेगा जिसको हम बेंजीन इंक से अटैच करके उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू फिनॉल. The next question is why alcohols have higher boiling points than corresponding hydrocarbons ऑफ सिमिलर मॉलिकुलर मासेस. तो इसका मीनिंग है फॉर एग्जांपल बच्चे CH4 है और दूसरी तरफ है हमारे पास अल्कोहल, एक जैसे कार्बन है, एक जैसे मॉलिकुलर मास होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है. सो लेकिन फिर भी ये अल्कोहल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? तो उसके लिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ कि अल्कोहल को हम इस वे से उसका बेंट स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं बिकॉज इन अल्कोहल ऑक्सीजन विल हैव 2 लोन पेयर्स
But in this diagram, you know, oxygen is more electronegative because its electronegativity is 3.5, second most highest electronegative element in the periodic table, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास आएगा partial negative charge. At the same time hydrogen will get partial positive charge. So you can see here, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? Yes, absolutely correct, it is the hydrogen bond which is forming in alcohol. So due to presence of this hydrogen bond, alcohols have higher boiling point as compared to the corresponding hydrocarbons. Next question is, what is Lucas reagent? Lucas reagent is HCl plus ZnCl2. This reagent is used in Grove's process to convert alcohols into हेलोएल्केन्स. ओके, जब आप एल्कोहल्स को HCl की प्रेजेंस और ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, देन इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन विद द रिमूवल ऑफ वाटर. इस प्रोसेस का नाम है ग्रूव्स प्रोसेस एंड दिस reagent is named as Lucas reagent. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन फिनॉल्स आर ट्रीटेड विद कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड. तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज यू नो फिनॉल ग्रुप में OH ग्रुप बहुत एक्टिवेट कर देता है रिंग को एट ऑल इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस. सो दैट इज वाई नाइट्रो ग्रुप will attach to at every ortho and para position and finally result in the formation of 2,4,6 trinitrophenol, and its common name is more famous. This compound in common language is named as picric acid. So ये question इस वे में भी आ सकता है that how can you prepare picric acid from phenol. ठीक है, ये 2,4,6 कैसे आया? बाय डूइंग द नंबरिंग. आप इस तरह से नंबरिंग कर सकते हो क्योंकि नाइट्रो और OH ग्रुप में OH ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस रूल. तो आप नंबरिंग करेंगे एंड यू विल हैव 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विच इज ऑल्सो नेम्ड एज पिक्रिक एसिड. The next question is, draw the structure of isobutyl alcohol. So what is this isobutyl alcohol? It is like this. isobutyl ये इसका कॉमन लैंग्वेज का नेम है. तो यहाँ हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बनाना है जो इस तरह से बनेगा. ब्यूटाइल क्यों? क्योंकि इसमें कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन एटम है. बट आप इसको IUPAC नेम भी दे सकते हैं साइमल्टेनियसली. नाउ इट विल बी नेम्ड एज 2-methyl propane 1-ol. Okay, the next question is, which enzyme is used to convert glucose into, this is the formula of glucose, into ethyl alcohol. So only enzyme which is responsible for this conversion is zymase. You should remember this name, zymase. The next question is, what happens when phenols react with carbon dioxide in the presence of NaOH. तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने किया है बिकॉज इट इज़ अ नेम रिएक्शन विच इज़ नेम्ड एज कॉल्बेज रिएक्शन. और इसी सेम रिएक्शन से हम सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं जो काम आता है एस्प्रिन की प्रेपरेशन में. तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सैलिसिलिक एसिड. सबसे पहले ये ग्रुप बनेगा and you know whenever there is sodium it is always removed by using HCl. okay, so in this way HCl के डालते ही NaCl remove होगा और in place of Na you will write H of dilute HCl. so this product is named as salicylic acid or 2-hydroxybenzoic acid. The next question is, convert phenols to chlorobenzene. So what are phenols? Phenols are like this. And what is the formula of chlorobenzene? It is like this. For this reaction, children, we can use phosphorus pentachloride, that is PCl5. It results in the formation of chlorobenzene with the removal of C6H5O thrice P double bond O. This is triphenyl phosphate group. Next question is, how can you differentiate between primary,
secondary and tertiary alcohol. Children, what is primary alcohol? The alcohol in which कार्बन एटम, ठीक है, जिस कार्बन एटम के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हो, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी. और जिस कार्बन के साथ OH अटैच हो, अगर उसको फर्दर टू अल्काइल ग्रुप्स हैं, देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी. इन द सेम वे इफ कार्बन एटम जिसको OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच है is attached further to 3 alkyl group, this is called tertiary. So ये थे आपके पास प्राइमरी और टर्शरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स. अब है हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट दैम, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट का कैसे करें. तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ल्यूकास रीजन टेस्ट, जिसको हम टर्बिडिटी टेस्ट भी कहते हैं. व्हाट इज़ दिस टर्बिडिटी टेस्ट चिल्ड्रन? जब आप अल्कोहल के अंदर, सपोज दिस इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल, इसमें हम ऐड कर रहे हैं लूकास रीजेंट विच इज़ HCl प्लस ZnCl2. तो ये सल्यूशन आफ्टर हीटिंग, ओके, हीटिंग के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ टर्बिड सल्यूशन. टर्बिड मीन्स अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा डर्टी अपीयरेंस में हो जाएगा, जिसके आर पार देखना मुश्किल होगा. तो अब ये टेस्ट है क्या स्टूडेंट? जैसे ही आप टर्शरी अल्कोहल में ये जो ल्यूकास रीजेंट है HCl प्लस ZnCl2 ऐड करते हैं, तो इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर्स हो जाती है. इफ़ टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर्स हो देन वो टर्शरी अल्कोहल है. बट अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, तब आप सेम रीजेंट ऐड करोगे, देन टर्बिडिटी विल अपीयर आफ्टर सम टाइम. ओके, और प्राइमरी में जैसे मैंने बताया कि इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ऑन एडिंग दिस HCl and ZnCl2 which is a Lucas reagent, turbidity appears only after heating. तो ये सारा डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी. टर्शरी में इमिजिएटली अपीयर होती है, इन केस ऑफ प्राइमरी अपीयर होती है आफ्टर हीटिंग, और इन केस ऑफ सेकेंडरी आफ्टर सम टाइम मीन्स अप्रोक्सीमेटली 5 minutes. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड फेरिक क्लोराइड. सो दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन. दिस इज अ फिनॉल ऑन रिएक्टिंग इट विद फेरिक क्लोराइड. ये टेस्ट भी है फिनॉल्स का. तो यहाँ पे तीन फिनॉक्साइड मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं आयरन के साथ. ओके, आयरन अपने 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए तीन फिनॉक्साइड आयन को यहाँ पर हम एक साथ ट्रीट कर देते हैं. तो इसका वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे इसको थ्राइस भी कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गिव कपलिंग रिएक्शन. तो कपलिंग रिएक्शन इज द सिंपलेस्ट वन रिएक्शन. यहाँ पर हम ट्रीट करने वाले हैं डाइजोनियम सॉल्ट को विद फिनॉल. ओके, सो वंस अगेन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा लॉन्ग है, तो मैं इसको यहाँ इस डायरेक्शन में फॉर्म करती हूँ. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट. हम इसको ट्रीट करेंगे इन द कपलिंग रिएक्शन विद फिनॉल. कपलिंग का मीनिंग ही बच्चे होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करेंगे, कपल हो जाएंगे. तो यहाँ से हम ये इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे विद द रिमूवल ऑफ HCl. ये H कौन सा है? बिकॉज बेंजीन रिंग के हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन एटम होता है. सिर्फ कहाँ नहीं होता है? जहाँ पर हमारे पास अटैच होता है कोई अदर ग्रुप. जैसे बेंजीन रिंग को जहाँ पर OH लगा है, सिर्फ वहीं पे H नहीं है, बाकी सारी पोजीशन पे H होता है. तो हमने वही एक H और एक Cl को रिमूव किया और ये एक कंपाउंड बना दिया, जो एक डाई होता है ऑरेंज कलर का. आप इसकी नंबरिंग करके इसका नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं. तो हम इसकी नंबरिंग इस तरह से करेंगे. तो ये है 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है उसको हमने नंबर करना है इन दिस वे, और हम कहेंगे कि 4th नंबर पर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है. सो इट इज़ नेम्ड एज 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. सो चिल्ड्रन, ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रीवियस एग्जाम्स. आई होप इससे आपको अपनी प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.